skill. आज के जमाने में जो रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, whether it's between the children and parents, between colleagues, between boss and employees, between husband and wife, between neighbors, relatives. So it has become very common these days. So how to maintain healthy relationships? Inshallah, we'll try to discuss. And this is not only for us as teachers, but for our students also, especially teenagers. If they learn this skill, and when they grow up, inshallah, this skill will be very beneficial for them. हम जब भी कभी बात करने का मौका मिलेगा स्टूडेंट्स के साथ, अपनी क्लास में इंटरेक्ट करेंगे तो थोड़ा थोड़ा हम इनको भी बता देंगे. Most life problems are relationship problems in disguise. तो इसमें क्या क्या होता है? स्ट्रेस है, it is one of the reason. One of the thing, then marriage issues, career struggles, loneliness, community conflicts, team failures, parent-child gaps, and community. तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स खराब होने के अलग अलग रीजंस या फिर एरियाज जो है उसमें उसका इम्पैक्ट कभी करियर पे पड़ता है, तो कभी मैरिज इश्यूज पर होता है, तो कभी हमारी टीम जो काम कर रही है उस पे होता है, कभी एक पेरेंट के साथ होता है. आवाज मेरी क्लियर है? जी जी क्लियर है जी, जज़ाकल्लाह. Now the question is, how many contacts do you have in your phone? थोड़ा सा चेक करेंगे तो we'll see that we have around 100, 200, 300, 500, 1,000 contacts. How many people truly understand you? And the third question, if you disappeared for 30 days, who would genuinely miss you? This is very important to know. The people living around us, the people laughing with us, the people partying with us, जो लोग हमारे साथ फंक्शंस में, ईद में, शादियों में, पार्टीज में, ट्रिप्स में, घूमने फिरने में, व्हाट्सएप पर स्टेटस शेयर करने में, या ग्रुप्स में है, या इंस्टाग्राम और फेसबुक पर है, तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको जेन्युइनली आपकी फिक्र है? इट्स नॉट अबाउट वेयर आर यू, मिस यू, या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो स्टेटस पे लगाना नहीं है. जो एक्चुअल कंसर्न है उस पर बात हो रही है. हॉस्पिटल में है तो उनको कुछ फिक्र है, ओके लेट्स मीट दिस पर्सन एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट्स रॉन्ग विद देम. कहीं कुछ मदद की जरूरत तो नहीं है उन लोगों को, ये जानना. This generation has the highest internet connection and the lowest emotional connection. पहले के जमाने में जब हम पहले मतलब जो आजकल 60s 70s में वो नहीं, की धूल जैसी है
ये देखছি বলো যে সবাই বলে আসেনি আইও সে তা উঠে নেচকা মটে কাজ করা है জান না হলো মটে কাজ করা है ওদের হেড কাজ করে রেখে যেটা মটে ফেলো হোস্ট আপনি আপনার কাজ করুন হোস্ট মিউট করে দেন তাহলে আমাকে Okay. পোস্ট করে দিন আমি করে দিচ্ছি Jazakallah. So the world has problems. पहले bigger families, long conversations, eye contacts, community rooted थी, handwritten letters थे, but many things changed now. Isolated rooms, endless while scrolling screen contact भी है तो बस वो eye contact नहीं, screens पर है, video calls है. You want to meet relatives? No, you just want to have hi hello on video calls. Then we are more concerned about followers. कितने लोग मेरा स्टेटस देखे व्हाट्सएप पर? How many people have seen my status? ग्रुप्स में कितने लोगों ने उसको देखा, लाइक किया? ये चल रहा है इस वक्त. अब द इल्यूजन ऑफ फीलिंग फुल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में इंसान खुद एक बहुत ही ज्यादा बिजी है ऐसा लगता है. सम पीपल आर स्टार्विंग इमोशनली व्हाइल ईटिंग 3 meals a day. And there are two different kinds of needs every person has. One is physical needs, another one is emotional needs. In physical needs, it's dopamine addictions, validation, likes, attention, replies. Then जो true emotional needs, nourishment जो है वो belonging, recognition, emotional safety, authentic appreciation, जो बहुत कम है इस वक्त. जो ऐसा फील होता है कि सब कुछ है या फिर जो मेरी जरूरत की चीज है वो, स्पेशली टीनेजर्स जो स्टूडेंट्स हैं, they're more worried about the likes, the followers, the people giving attention to them, the replies to their messages. कोई पोस्ट करते हैं तो उसके चैट बॉक्स में कितने रिप्लाई आ रहे हैं. The emotional needs में जो एक्चुअल जरूरत है, that is belongingness, recognition, emotional safety, authentic appreciation. थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे. थोड़ा ऐसा लग रहा है फिलोसॉफिकल बात चल रही है. ओके. The mask we wear to hide our starvation. अभी जो इमोशनली जरूरत जो है उसमें it feels like I'm completely fine, we are happy, which is fake happiness and social media posts. Then hyper independence and fake strength. मतलब मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ. I'm the king of my own world or kingdom. और ऐसे बहुत स्टेटस लगाना व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना. ऐसा लगता है कि आई एम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, बट डीप इनसाइड द हिडन क्रेविंग फॉर समवन टू ट्रूली लिसन. किसी के साथ बैठ के बात करना, किसी को अपनी परेशानी सुनाना. एवरीवन वांट्स टू हैव दैट फीलिंग, or everyone wants that support, a person to listen truly. The distance is rarely an accident, it is a learned difference. इमोशनल डिस्टेंस जो होता है उसके जो रीजंस है, पीपल डिस्कनेक्ट, पीपल, बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में दूर दूर होना शुरू हो जाते. दे डोंट वांट टू बी विद अस एनीमोर. दूरियां आ जाती हैं, कलीग्स में आ जाती हैं, टीचर और स्टूडेंट में आ जाता है, पेरेंट्स और चिल्ड्रन में आ जाता है, सिबलिंग्स में आता है. तो इसके रीजंस जो ऊपर नजर आता है, दैट इज इमोशनल डिस्टेंस, बट द एक्चुअल रीजन इन डीप इनसाइड इज दिस: never appreciated in childhood,
constant comparison with other people, other children, betrayal of trust, धोखा देते हैं बहुत सारे लोग. बचपन में कितनी बार ऐसा होता है, just to take any work from children, we promise them, अगर तुम ये काम करोगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, and we don't give that chocolate to them. फिर बच्चे कभी कभी बाइक पे जाने के लिए जिद करते हैं हमारे साथ जब हम घर से बाहर निकलते हैं. What we say when we tell them that go inside and change your dress and come back, कि घर में अंदर जाओ, एक कपड़े चेंज करके जाओ, हम जाएंगे. अब जब बच्चा अंदर जाता है हम निकल जाते हैं बाइक. और ऐसा अगर 3-4 बार हुआ तो बच्चों को पता चल जाता है. Then whenever we say that go inside and change the dress, even if we are genuine, बच्चे अंदर नहीं जाते, वो गेट पे ही रुके रहते. They don't they want to change the dress at the gate or door because they're not they don't believe that if once they go inside we will leave, हम भाग जाएंगे गाड़ी में, हम उनको नहीं लेंगे. तो ये जो betrayal of trust है ये बचपन से होता है. डीप सीटेड इनसिक्योरिटीज भी बहुत सारे होते हैं कि मुझे ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे जो राइट्स हैं मेरे, मुझे जैसा ट्रीट किया जाना है वो नहीं रहता तो इंसान हमेशा इनसिक्योर रहता है. ईगो का प्रॉब्लम है, रिजेक्शन का प्रॉब्लम है, और सोशल मीडिया की कंडीशनिंग है कि लाइफ हमेशा अच्छी लगती है सोशल मीडिया पर. कपल्स पोस्ट देयर वीडियोस, हस्बैंड वाइफ, अब उसमें ऐसा लगता है कि दे आर ऑलवेज हैप्पी, they don't quarrel with each other, they don't fight with each other. अब उसको देखने के बाद ऐसे एक्सपेक्टेशंस आते हैं कि ओके बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ. आजकल अभी एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, पेरेंट्स मेक वीडियोस विद देयर चिल्ड्रन एंड दे आर सो हैप्पी टुगेदर इन दैट 5 or 10 minutes of video that वो इस अंदाज से उसको रखते हैं, वीडियो बनाते हैं, देख के लगता है कि these people don't fight. अगर रिलेशनशिप बच्चों के साथ होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ कैसे बन जाते हैं. या आजकल एक और चीज आ रही है, मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ आर मेकिंग वीडियोस एंड नाउ द एक्सपेक्टेशन स्टार्ट्स द पीपल हु वॉच दैट कि द मदर इन लॉ एक्सपेक्ट्स wish my daughter-in-law was like this girl who is in the video. ये सोशल मीडिया की भी ऐसी कंडीशनिंग हो जाती है. The expectation is quite high. People are always going to restaurants. Actually, they go once in a month. But when we see different videos continuously, we get conditioned that okay, the life is happy only when we can constantly visit restaurants, shopping malls, we constantly keep traveling और टूर्स पे रहेंगे हम, बार बार अगर जाते आते रहेंगे तो तभी लाइफ हैप्पी है. अदरवाइज मेरी लाइफ तो खुशी नहीं है, अच्छी नहीं चल रही मेरी लाइफ, ऐसा उनको फील होने लगता है. व्हाट हर्ट्स मोर, अभी एक क्वेश्चन है हमारे लिए, हमें कौन सी चीज से ज्यादा तकलीफ होती है, a sudden public insult or being repeatedly ignored over years? दोनों में से कौन सा है? अगर हम थोड़ा सा इस पे गौर करें कि व्हाट इज हर्टिंग अस मोर, पब्लिक में सबके सामने इंसल्ट करना ज्यादा हर्टिंग है या फिर बीइंग रिपीटेडली इग्नोर्ड ओवर इयर्स? अब हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि अरे सबके सामने इंसल्ट कर दिया, पूरी स्कूल के सामने इंसल्ट कर दिया, डांट दिया सबके सामने, ऐसा नहीं होना चाहिए था. एक वो है जो फौरन नजर आने वाला एक प्रॉब्लम है. दूसरा एक ऐसा भी है जो बहुत लंबे टाइम तक वी आर साइडलाइंड, वी आर नॉट गिवन ड्यू रिस्पेक्ट, एक्नॉलेजमेंट. ये और भी ज्यादा डेंजरस होता है, जो सडनली एक मोमेंट पे पूरा का पूरा ब्लास्ट होता है.
तो माइक्रो wounds और माइक्रो मूवमेंट्स, माइक्रो wounds, tiny actions that damage hearts, इंटरप्टिंग, बात करने ही नहीं देते, बार बार बात को काटते रहते, दे डोंट लिसन पीपल। तो इससे भी रिलेशनशिप खराब होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता खराब होता है। चेकिंग फोन व्हाइल लिसनिंग, पीपल, कोई सामने वाला बात कर रहा है, वी आर कंटिन्यूअसली ऑन फोन, वी आर नॉट पेइंग अटेंशन, वी आर ऑन फोन, दैट्स इट। And delayed replies, we check the message, we don't reply properly, we we listen to someone and say I'll get back to you later, 1 घंटा मुझे टाइम दीजिए, मैं बात करता हूँ, and we don't reply. करेक्टिंग पब्लिकली, पब्लिक में ही उसको सही करना किसी की गलती को, ये भी एक प्रॉब्लम है। बार बार करते हैं तो तभी वो बहुत बड़ा डैमेज हो जाता है। मॉकिंग मिस्टेक्स, स्टूडेंट्स के साथ भी कभी कभी हमारे क्लास में होता है, कोई गलती करता है तो फौरन उसका मजाक उड़ाते हैं, या फिर उसको फौरन पब्लिक में ही उसको डांटना शुरू करते हैं। मॉकिंग मिस्टेक्स। देन इमोशनली अनअवेलेबल पेरेंटिंग, इमोशनली अनअवेलेबल पेरेंटिंग, हम वी आर नॉट इमोशनली प्रेजेंट और अवेलेबल फॉर आवर चिल्ड्रन। हम क्या कर रहे हैं, ड्रेस चाहिए दे देंगे, फोन चाहिए दिलाएंगे, चॉकलेट चाहिए आई विल गिव दैट टू यू, बुक्स चाहिए, बैग चाहिए, शू चाहिए, गेम के लिए कुछ चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल, बट इमोशनल सपोर्ट इज नॉट देयर, वी आर नॉट गिविंग देम प्रॉपर टाइम, वी आर नॉट लिसनिंग टू देम, तो वो भी एक प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए करना क्या, टाइनी एक्शंस दैट बिल्ड हार्ट्स, रिमेम्बरिंग स्मॉल डिटेल्स, छोटी छोटी चीजें याद रखेंगे तो उसका अच्छा फायदा होगा। होल्डिंग आई कॉन्टैक्ट, सेइंग आई एम प्राउड ऑफ यू, ये बहुत सिंपल वर्ड है, वाह माशाल्लाह बहुत अच्छा किया आप, कीप इट अप, गुड गोइंग, या ऐसे जो भी आप बोलना चाह रहे हैं, बच्चे को फौरन अगर उस वक्त तारीफ कर देंगे 2-4 सेंटेंसेस में, या इवन स्टाफ के लिए या स्पाउस के लिए, it has so much of impact. Asking did you eat, बहुत सिंपल सेंटेंस है, खाए क्या, बट उसका अपना असर है। लिसनिंग विदाउट जजिंग, कि फौरन किसी कंक्लूजन पे नहीं आना, वी शुड कीप लिसनिंग एंड डोंट जज, वरना एक दो अभी सेंटेंस ही होते, वी डायरेक्टली जंप टू द कंक्लूजन, ओके आई अंडरस्टूड एवरीथिंग, अभी बोलने की जरूरत नहीं, मुझे सब समझ में आ गया है, अभी मैं ऐसा कर देता हूँ, ये ऐसा कर लो। We immediately judge people, we don't listen to them completely, ये भी नहीं होना चाहिए। People don't leave relationships suddenly, they leave slowly, emotionally first. ये जो relationships खराब होते हैं कंपनीज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ये एक दिन का प्रॉब्लम नहीं होता, ये जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इसके नीचे एक बहुत ही बड़ा आइसबर्ग नीचे भी है, जो पानी में होता है। समंदर में आइसबर्ग जो होता है, आइस के पहाड़ अगर हम समझे तो माउंटेन जो ऊपर होता है पानी के, वो बहुत छोटा होता है, एंड विच इज विजिबल, बट जो अंदर छुपा हुआ होता है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। मौलाना आ गए? बेग सर, जी नहीं, आप एक थोड़ा ये करिए। ओके बट द एक्चुअल रीजन फॉर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स इज, जो छुपा हुआ होता है, जो जल्दी नजर नहीं आता, ईगो डिस्गाइज्ड एज सेल्फ रिस्पेक्ट। होता तो ईगो है, मगर ऐसा फील होता है कि हमें सेल्फ रिस्पेक्ट है। अरे रिलेशनशिप में थोड़ा ही आदमी छोटा बनेगा, अपने भी कोई इज्जत है,
तभी हम गुलाम थोड़ी है। सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में कभी कभी ईगो बहुत बड़ा होता रहता है, रिलेशनशिप खराब होने का एक रीजन है। देन आई एम बिजी कल्चर, when we get too busy, then also it creates problem. And the third thing is digital distractions. People get too busy in digital devices and social media that they don't think much about the consequences. And the fourth one, emotional laziness. We express our emotions but make it very late, do it very late. Emotionally we are very lazy and we don't even know how to express those emotions to others. Someone is in problem and we don't know how to console them. We don't know how to talk to them when they are in problem. Fifth one, transactional relationships. ये सिर्फ लेन देन वाले जो मामलात वाला मसला है, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना, उनके पैसे लिए थे रिटर्न नहीं कर रहे, कर्ज लिया था रिटर्न नहीं हो रहा, और वैसे बहुत सारी चीजें। एक दूसरा, सिर्फ रिलेशनशिप जो है वो लेन देन की हद तक ही रह जाता है। कभी कुछ काम आया तो याद कर लिए, काम नहीं तो छोड़ दिए। ये भी एक है ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप के पैसों की जरूरत है, ओके आई नीड सम हेल्प, देन वी कॉल देम, व्हेन काम हो गया तो फिर भूल गए, याद भी नहीं किए। कंपटीशन इनसाइड फैमिलीज। सिक्स्थ वन इज कंपटीशन इनसाइड फैमिलीज। वो बहुत सारा होता है, बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है, बिजनेस में, जॉब्स में, कार्स में, ज्वेलरी में, शॉपिंग में, प्रॉपर्टीज में बहुत होता है। देन इनएबिलिटी टू अपोलोजाइज। कुछ गलती होता है तो people don't ask sorry, they just keep living their life naturally. ऐसा भी नहीं होना है। inability to apologize. Then emotional immaturity. emotional immaturity के जैसा पहले बताया कि how to express our emotions we don't know. When we get angry we don't control it. When we become very happy, then also we don't control it. बहुत खुश हो गए तो मजाक उड़ाने लग गए. When we get too close with somebody, we start mocking, making fun of them. जब बहुत गुस्सा आता है तो फौरन चिल्लाना शुरू करते हैं, अरे तुम काम नहीं आ सकता क्या तुम्हें, क्या कर रहे हो तुम, बेकार तुम लोग हो, सब वेस्ट हो, people don't even know how to work. ऐसा emotional immaturity. We don't know how to handle our emotions properly. मुझे नेक्स्ट सेशन में जाना है, यूपी नॉर्थ इंडिया का। अगर मौलाना आए तो थोड़ा बता दें प्लीज। जी अदरवाइज आई विल कंक्लूड इट बाय 35 in 2 minutes. जी। So these are the things, many of you are aware of it, but the problem is हम लोग क्या हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में बच्चों को ये चीजें सिखा रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो कंपनी, ऑफिस, स्कूल, जॉब छोड़ के निकलते हैं, नॉट बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू टीच, बट बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर रिस्पेक्ट, इमोशनल सपोर्ट जो मिलना चाहिए। 2-4 हजार सैलरी कम दो तो भाई मगर रिस्पेक्ट दो, अच्छे से बात करो, एक अच्छी टीम की तरह काम करेंगे। टॉक्सिक स्टाफ कल्चर बन जाता है। तो ये एक्चुअल प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से ताल्लुकात खराब होते हैं। तो अच्छा स्टाफ निकल जाता है, अच्छे टीचर्स मिस हो जाते हैं स्कूल से। बिकॉज ऑफ दिस स्टूडेंट लूज मेनी थिंग्स, बिकॉज द प्रॉब्लम इज इन द स्टाफ रूम, the problem is with the management, the problem is with the
अदर स्टाफ। तो ऐसा प्रॉब्लम की वजह से भी बहुत सारा लॉस हो जाता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। और